بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو جماعت چہارم کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ سوال نمبر 2، مختلف صوبوں کے لوگ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے درست جواب دیا۔ پاکستان میں 4 صوبے ہیں۔ ہر صوبے کے لوگوں کے خاص قسم کے لباس اور رہنے سہنے کے طریقے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا یہی موضوع ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے ثقافت کے رنگ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ایک اہم بات جانیں۔ پاکستان میں یہ ثقافتی گروہ آباد ہیں: کشمیری، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ اور ہاں، معنی میں یوں بھی بتاؤں گی کہ لفظ کا مطلب خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ثقافت، اس کا مطلب ہے زندگی کا طریقہ، یعنی زندگی کا وہ طور طریقہ جس میں ہمارا لباس، کھانا پینا اور ہمارے تہوار آ جاتے ہیں۔ رنگا رنگی، اس کا معنی ہوتا ہے مختلف رنگوں کی۔ پھرتی، اس کا مطلب ہے چستی۔ زیور، اس کا معنی ہوتا ہے گہنے، وہ گہنے جو خواتین پہنتی ہیں۔ تہمد، اس سے مراد ایسی چادر ہے جس سے سطر ڈھانپا جاتا ہے۔ کثرت، اس کا مطلب ہے زیادتی۔ ہاتھ بٹانا، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، جیسے آپ گھر کے کام کاج میں ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ 4 چاند لگانا، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ مویشی، اس کا مطلب ہوتا ہے پالتو جانور، جیسے گائے، بھینس وغیرہ مویشی ہوتے ہیں۔ تہوار، اس کا مطلب ہوتا ہے قومی اور علاقائی سطح پر منائے جانے والے خاص دن، جیسے یوم آزادی، یوم یکجہتی کشمیر وغیرہ ہمارے تہوار ہیں۔ کڑھائی، اس کا معنی ہے دھاگے سے کپڑوں پر کیا جانے والا کام۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ مس ہینا بچوں کی پسندیدہ استانی ہے۔ وہ سبق ہمیشہ دلچسپ انداز میں پڑھاتی ہیں۔ بچے ان کے سبق میں ہمیشہ دلچسپی لیتے ہیں۔ آج انہوں نے سبق ثقافت کے رنگ پڑھانا تھا۔ ان کے ہاتھ میں مختلف پوسٹر تھے۔ انہوں نے بچوں سے کہا، بچوں، ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا طریقہ ثقافت کہلاتا ہے۔ ثقافت میں ہمارا لباس، کھانا پینا، تہوار وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے ثقافت کے رنگ۔ آج کے سبق میں ہم اپنے وطن کی ثقافت کی رنگا رنگی دیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے کہ ہماری ثقافت کتنی خوبصورت ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ سبق توجہ سے سن رہے ہیں؟ اچھا، اگر توجہ سے سبق سن رہے ہیں تو پھر بتائیے، مس ہنا کے ہاتھ میں کیا تھا؟ جی ہاں، آپ نے درست بتایا کہ مس ہنا کے ہاتھ میں پوسٹر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک پوسٹر دکھایا اور بولیں، انہیں دیکھیے، یہ کون ہے؟ یہ کشمیری بچے ہیں۔ انہوں نے قمیضیں اور شلواریں پہن رکھی ہیں۔
लड़के के सर पर टोपी है और लड़की ने चादर ओढ़ रखी है। इन्हें इल्म हासिल करने का इतना शौक है कि दूर दूर से पैदल सफ़र करके अपने स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। ये बच्चे पहाड़ी इलाके में रहते हैं और बड़ी फुर्ती से पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। ये उर्दू और पहाड़ी ज़बान बोलते हैं। कश्मीर में नाशपाती, सेब और आड़ू कसरत से पैदा होते हैं और कश्मीरी बच्चे ये फल खुश होकर खाते हैं। मकई की रोटी और चावल उनकी पसंदीदा खुराक है। इसके बाद उन्होंने दूसरा पोस्टर उठाया और बच्चों से गोया हुई, इधर देखिए, ये हमारे बलोची और मकरानी बहन भाई हैं। उन्होंने भारी शलवारें और चप्पल पहन रखे हैं। इन्हें भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। फारिग वक्त में ये भेड़ बकरियां, दुम्बे और ऊंट चराते हैं। लड़कियां पढ़ती भी हैं और काम काज में हाथ भी बटाती हैं। चांदी के जेवर पहनकर वो बहुत खुश होती हैं। तीसरा पोस्टर उठाया तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये बहन भाई कौन है? बच्चों ने एक जबान होकर कहा, ये पश्तून बहन भाई हैं। मिस हिना कहने लगी, जी हाँ, ये हमारे पश्तून बहन भाई हैं। दोनों ने लंबे कुर्ते और ढीली ढाली शलवारें पहन रखी हैं। लड़के के सर पर लुंगी है और लड़की के सर पर चादर। ये पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में रहते हैं। इनका रंग सुर्ख और सफ़ेद है। पश्तो इनकी ज़बान है, लेकिन ये स्कूल में उर्दू भी पढ़ते हैं। इन्हें तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। ये बड़ों के साथ भेड़ बकरियां चराते और खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाते हैं। इनके इलाके का खटक नाच बहुत मशहूर है। मिस हिना ने चौथा पोस्टर उठाया तो बच्चों ने पहचान कर फौरन कहा, सिंधी बच्चे। मिस हिना मुस्कुराईं और कहने लगीं, आप लोगों ने दुरुस्त पहचाना, ये सिंधी बच्चे हैं। इन्होंने लंबे और ढीले ढाले कुर्ते पहन रखे हैं। लड़के के सर पर शीशों वाली टोपी और लड़की के सर पर चादर है। लड़की के कुर्ते पर फूल कढ़े हुए हैं। इन्हें भी लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। आखिर में पंजाब की बारी थी। मिस हिना ने पोस्टर दिखाते हुए कहा, ये हमारे पंजाबी बहन भाई हैं। लड़के ने तहमत बांध रखा है और उसके सर पर पगड़ी है। लड़की के सर पर दुपट्टा है और वो खुली शलवार कमीज पहने हुए है। प्यारे बच्चों, आपकी तवज्जो सबक की तरफ है ना? अच्छा, तो फिर सोचिए और बताइए कि लड़के के सर पर क्या था? जी हाँ, आपने दुरुस्त जवाब दिया। लड़के के सर पर पगड़ी थी। शाबाश! इसका मतलब है कि आप तवज्जो से सबक पढ़ रहे हैं। चलें फिर सबक पढ़ना जारी रखते हैं। इन्हें तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। पढ़ने के वक्त दिल लगाकर पढ़ते हैं और फारिग वक्त में माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाते हैं। देहाती बच्चे मवेशी चराते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। ये साग और मकई की रोटी बड़े शौक से खाते हैं। ये मेलों में जाने के बहुत शौकीन होते हैं। बच्चों, ये बच्चे मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, लेकिन इनमें बहुत सी बातें मुश्तरक भी हैं। मिसाल के तौर पर इनकी अक्सरियत मुसलमान है। सब उर्दू ज़बान बड़े शौक से बोलते हैं। इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत है और इन्हें अपने वतन से प्यार है। ये बच्चे गोया फूलों का गुलदस्ता है जिसमें रंगारंग फूल हैं। इनकी रंगारंगी ने हमारे वतन के हुस्न में 4 चांद लगा दिए हैं। प्यारे बच्चों, हमने सबक पढ़ लिया है। सबक के मुताबिक याद रखने की बातें ये हैं। याद रखने की बातें, लोगों के रहने सहने का तरीका सकाफत कहलाता है। हमारे वतन में लोगों का रहन सहन मुख्तलिफ है।